Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 10 Rules of Counting is under discussion. Today lecture number 2 and the topic is Fundamental Principle of Counting FPC. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic Fundamental Principle of Counting FPC of the chapter 10 Rules of Counting. In the contents of today's lectures, first of all, I will discuss the basic definition of fundamental principle of counting. In the second point, I will discuss general formula of FPC, and the last point is our exercise question. First of all, I will discuss the basic concept of a fundamental principle of counting. The fundamental principle of counting states if one task can be performed in m ways and another independent task can be performed in n ways, then both tasks together can be performed in m by n ways. This is also called multiplication principle of counting. Here students, if we have two coins, अगर हम first coin को toss करें तो we have two outcomes and m equal to two ways, और अगर दूसरे coin को अगर toss करें तो we have also two ways, n equal to 2 head and tail. तो इनको अगर हम लोग combine अगर toss करें तो आपके पास जो है वो total m cross n means m by n 2 into 2 equal to 4 ways. So there are total number of outcomes are 4 when two coins are tossed independently. Now I will discuss the general formula of FPC. The general formula of FPC is derived as if a process consists of k independent steps, step 1 can be done in n1 ways, step 2 can be done in n2 ways, step 3 can be done in n3 ways, and so on. Step k can be done in nk ways. Then the total number of possible outcomes are, तो टोटल आउटकम्स में आपके पास तमाम स्टेप्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज. n1 मल्टीप्लाई n2 into n3 into n4 and so on nk. This is the general formula of fundamental principle of counting. टोटल नंबर ऑफ वेज को फाइंड करने के लिए आपने तमाम नंबर ऑफ वेज को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, और देन यू कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ एनी experiment or any question. The last point is of my exercise question. In question number 1, a coin is tossed and a die is rolled. How many possible outcomes are there? Here a coin can be tossed in two ways, that is head or tail, and a die can be rolled in 6 ways, that is 1 2 3 4 5 6. Students, here coin has two faces, head or tail, and dice has 6 faces, 1 2 6. In step 1 can be done in n1 equal to 2 ways, और step 2 में आपके पास n2 की वैल्यू 6 होगी, आपके पास 6 वेज होंगे, और जब आप एक डाई को रोल करेंगे तो आपके पास 6 चॉइसेस हैं, 6 ऑप्शंस हैं, और एक कॉइन को जब स्टेप 1 में आप लोग थ्रो कर टॉस करेंगे तो आपके पास 2 वेज होंगे. देन अ कॉइन एंड अ डाई कैन बी थ्रोन टुगेदर. वी हैव टोटल वेज n1 into n2. दोनों के नंबर ऑफ वेज को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 6 12. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो 12 होंगे. तो टोटल आउटकम्स आर, फर्स्ट अगर कॉइन आपका फर्स्ट पे हमने कॉइन को टॉस किया है तो आपके पास हेड है, हेड के साथ अपीयर हो सकता है 1, डाइस का फेस 1, देन हेड के साथ ही डाइस का आपके पास फेस 2 अपीयर हो सकता है. सिमिलरली हेड के साथ 3, फेस 3 अपीयर हो सकता है, क्योंकि सेकंड पे आपने अपना एक डाइस को रोल किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने एक कॉइन को अगर टॉस किया है, और अगर हम लोग इन दोनों को इकट्ठा रोल करें तो आपके पास 12 वेज बनते हैं. तो आपके पास हेड के साथ उसके सारे फेसेस आ सकते हैं, हेड के साथ 4 फेस 4, हेड के साथ फेस 5 और हेड के साथ फेस 6, और सिमिलरली टेल के साथ फेस 1, टेल के साथ फेस 2, टेल के साथ फेस 3 और टेल के साथ फेस 4, टेल के साथ फेस 5 एंड देन टेल के साथ फेस 6, एंड वी हैव द 12 वेज. और आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो आपके पास मैंने यहाँ पे राइट कर दिए.
हेड 1 और हेड 2। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एट आउटकम्स हैं व्हेन अ कॉइन एंड अ डाइस थ्रो टुगेदर। In the statement of question number 2, a student has 3 suits and 5 ties. How many ways can he wear a suit and a tie? Now students, question is how many combinations are used from 3 suits and 5 ties? A suit and a tie combinations consist of 2 independent choices. In step 1, choose one suit from 3 suits एंड वन इक्वल टू थ्री। आपके पास तीन चॉइसेस हैं एक सूट को सिलेक्ट करने के लिए। और स्टेप टू में स्टूडेंट्स के पास एक सिलेक्टेड सूट के साथ देर आर 5 पॉसिबल टाई चॉइसेस। और टाई चॉइसेस आप एक फर्स्ट अगर टाई सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ आप 5 डिफरेंट टाइज को यूज कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट अगर आपने सूट सेलेक्ट करना है तो उसके साथ भी आप 5 डिफरेंट टाइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड सूट के साथ भी आप 5 ऑप्शंस होंगी। तो आपके पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं। फर्स्ट में N1 3 होगा, आपके पास 3 सूट्स हैं। और सेकंड में आपके पास N2 इक्वल टू 5 होगा, 5 वेज होंगे। सिंस ईच चॉइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स वी अप्लाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आर N1 इंटू N2। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर ऑफ वेज को, N1 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर इज 15। तो 15 चॉइसेस होंगी कि वो एक सूट और एक टाई को यूज करे फ्रॉम 3 सूट्स एंड 5 टाइज से। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूजिंग formula total number of ways N1 into N2. The statement of question number 3 is a cafeteria offers a choice of 2 soups, 5 sandwiches, 3 desserts and 3 drinks. How many different lunches, each consisting of 1 soup, 1 sandwich, 1 dessert and 1 drink are possible? Here students, lunch consists of 4 independent choices. In step 1, choose one soup from 2 available soups. दो सूप्स में से कोई एक सूप को सिलेक्ट कर सकता है। Here N1 इक्वल टू 2, आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो वेज हैं, कोई भी एक सूप वो सिलेक्ट कर सकता है इन स्टेप 1 में। इन स्टेप 2 सेकेंडली वो हर सूप के साथ फॉर ईच सेलेक्टेड सूप देर आर 5 पॉसिबल सैंडविच चॉइसेस। उसके पास 5 ऑप्शंस हैं सैंडविच के लिए। तो N2 आपके पास 5 होगा, 5 वेज इंडिपेंडेंट चॉइस है। और थर्ड स्टेप में फॉर एवरी सूप एंड सैंडविच कॉम्बिनेशन, जब वो एक सूप और एक सैंडविच का कॉम्बिनेशन ले लेगा देन देर आर 3 पॉसिबल डेजर्ट चॉइसेस। तो आपके पास थर्ड इंडिपेंडेंट चॉइस जो है वो आपके पास डेजर्ट चॉइस है और आपके पास 3 डेजर्ट्स हैं। तो N3 इक्वल टू 3 वेज होंगे। और देन फाइनली जब वो एक सूप, एक सूप के साथ एक सैंडविच और सैंडविच के साथ एक डिजर्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, उसका कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा, देन देयर आर 3 पॉसिबल ड्रिंक चॉइसेस। तो फॉर एवरी सूप, सैंडविच एंड डिजर्ट कॉम्बिनेशंस तो आपके पास 3 ड्रिंक चॉइसेस होंगी। तो N4 इक्वल टू 3 ऑप्शंस होंगी। ये आपके पास 4th इंडिपेंडेंट चॉइस होगी। तो हेयर स्टूडेंट्स आपके पास 4 इंडिपेंडेंट चॉइसेस में N1 इक्वल टू 2 है, 2 सूप्स गिवन है। N2 इक्वल टू 5 सैंडविचेस, N3 इक्वल टू 3 डेजर्ट्स और N4 इक्वल टू 3 which means 3 drinks. So there are the 4 independent choices. Since each choice is independent of others, we apply the fundamental principle of counting FBC. Now students, we have the 4 different independent choices and 1 2 soups and 2 5 sandwiches and 3 desserts and 4 3 drinks. तमाम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे using FBC. Then the total number of possible different lunches are 90. 2 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 3। तो आपके पास टोटल आपके पास 90 जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं। 90 कॉम्बिनेशंस को आप लोग लंचेस के लिए यूज कर सकते हैं और जो कैफेटेरिया जो है वो आपको ऑफर कर रहा है 2 सूप्स, 3 सैंडविचेस, 5 सैंडविचेस, 3 डेजर्ट्स एंड 3 ड्रिंक्स।
In this lecture, the basic concept of the fundamental principle of counting has been discussed. Its general formula and important exercise questions are also discussed. इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।